Students, on last lecture we were learning Moore and Millet machines. Okay, so we have discussed their formal definitions and designs, and we have discussed that the structure of the Moore machine is somewhat like this. Here we have only one change from the normal FA, that is the output is also included inside the state. Okay, so this is a change in the transition diagram representation, and the change in transition table can be seen here in this transition table. Here we are having old state and then output by old state, and then the rest columns are just similar to the normal FA, that after reading input symbols, which states we should go. So this was the simple changes which were brought into the Moore machine from the normal FA. Then we have discussed Millet machine also, and if you look at, this is the structure of the Millet machine. So it is a bit different from the Moore machine. It is also similar to the FA. The only change brought here is that with the input we are also mentioning the output, because our output is dependent on state as well as the input symbol. So that's why on the transition itself we are mentioning what will be the output. So only this is the change. Now output is not inside the state, it is on the transitions. So as per this change, this will be the transition table for Millet machine. So the format is old state, and then we will be having columns corresponding to each input symbol, like for A and for B, and each such column will be divided into two sub columns corresponding to the new state which we reach after reading that particular symbol, and the output which has to be printed on that particular input. Okay, so these two columns will be there corresponding to each input alphabet. So after B also there is new state and output. So if we are in the Q0 state, after reading A, in which state we will be reaching, and what output we will be printing. So this was the format of Millet machine. And then we were discussing design of Millet machines, and we have taken one example. Now we will take in today's lecture certain important examples which are corresponding to the electronic circuitry design. Okay, so as you can see on the screen, Millet machine, we have to design a Millet machine for ones complement. Is it? So everybody of you know what is the ones complement. Suppose input is of this form 1 0 0 1 1. Okay, so each bit will be inverted. Each bit will be inverted, and the result will be the ones complement of that particular input. So 1 is converted to 0, here this 1 is converted to 0, here this 0 is converted to 1, this 0 is converted to 1, and this 1 is converted to 0. So this will be the output corresponding to the given input. So such a machine we have to design. We can do it very easily with the help of a Millet machine. Okay, just look at what is our requirement here. Whenever we are reading a 1, we should print a 0. Whenever we are reading a 0, we should print a 1. Only this is the simple requirement which we have. Okay, and we can make a very simple Millet machine corresponding to it. Suppose there is a start state, say Q0. Okay, and there is no concept of final state. अब मेरी requirement क्या है कि अगर मैं 0 read कर रहा हूँ, then I should print a 1. Okay, क्या चेंज स्टेट करने की आवश्यकता है? कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर बार मान लीजिए पहले मुझे 1 मिला, मैंने 0 प्रिंट किया, फिर 1 मिला 0 प्रिंट किया, सेम वर्क कर रहा हूँ. उसके बाद फिर 0 मिला तो 1 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 0 मिला तो 1 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 1 मिला तो 0 प्रिंट कर रहा हूँ. मीन्स एवरी टाइम आई विल बी रीडिंग ए 1, आई विल बी प्रिंटिंग ए 0. एवरी टाइम आई विल बी रीडिंग ए 0, आई विल बी प्रिंटिंग ए 1. सो मीन्स मुझे स्टेट चेंज करने की कहीं आवश्यकता नहीं. सो सिंपली आई विल मेक ए लूप हियर, एंड व्हेनेवर आई विल बी रीडिंग ए 0, I will be printing a 1. Is it? Similarly, whenever I will be, just 1 minute. Whenever I will be reading a 1, I will be printing a 0. Is it? So simple, this machine will work as the ones complement. Just students see, will it work or not? Class. Understood? Very simple design, very simple machine.
what we have seen, we have just seen our requirement. What is our requirement? हमें किस input के corresponding क्या output चाहिए था, that we have seen, and accordingly we have designed it. Class, is it understood? Yes, sir. Okay. So it was very simple, and if you want to write its transition table, it is again very simple. We will follow the format corresponding to the Mealy machine. और Mealy machine के format में क्या है, ओल्ड स्टेट आएगी हमारी, और ओल्ड स्टेट के साथ जितने हमारे इनपुट सिंबल्स हैं, इनपुट सिंबल हमारा क्या है, 0 और 1. अब यहाँ एक चीज़ और देखिए आप, मेरे इनपुट सिंबल जो इनपुट अल्फ़ाबेट है इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज ऑल्सो 0,1, एंड जो मेरा आउटपुट अल्फ़ाबेट था दैट इज ऑल्सो 0 and 1. मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इनपुट और आउटपुट अल्फ़ाबेट में सेम सिंबल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट सिंबल्स भी हो सकते हैं. इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. हियर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम सेज दैट जो मेरे जिन सिंबल से मेरा इनपुट स्ट्रिंग बना है, उन्हीं सिंबल से मेरा आउटपुट स्ट्रिंग बन रहा है. ओके, सो ओल्ड स्टेट एंड आफ्टर आफ्टर 0 and then after 1, simply. And then I will be dividing it into 2. The new state I am writing like ns, okay, and it is the output. Simply after 1, what will be the new state and what will be the output? Okay, so here we have only one state, that is the q0 state, which is a start state also. Now q0 after 0, I will remain at the same state, and after 1 also I will remain at the same state. So I am writing q0 here as well as q0 here, because I am not going to change the state whether I read a 0 or I read a 1. Then if I am reading a 0, what is the output? I have to look here, it is 1. So I will write 1 here. After 1, if I am reading a 1, what is the output? It is the 0. So I will be writing a 0. So it is the transition table corresponding to this Mealy machine. So this I have just included to remind you about the format of the transition table for Mealy machine. Is it? Now we come to the second problem. We have to design a Mealy machine for incrementing given binary number. Okay, so this is nothing but what we are trying to do. We are trying to make a incrementing machine. Okay, we just assume that its input will be a binary number and it will prints out a binary number that is one larger. Just you look here, if it is 10011, okay, so output will be this. How this output has come? 10011. What I am doing, I am adding a 1 here. I am adding a 1 here. So 1 and 1, it comes 0, and there is a carry of 1. There is a carry of 1. Then 1 1, again it is 0. It is a carry of 1 to the next bit. Then 1 0, it will be equal to 1, and then there is a carry of 0 to the next bit. Then 0 0, it will be 0. Carry of 0 to the next bit. 0 1, it is 1. Carry of 0 to the next bit. Something like this. Okay. So if this is the input, then this will be the output. And you can check here the same thing I have written here, 10100, 10100. So in this manner, so if this is the input, this should be the output. Such a machine I have to design. Okay. अब इस मशीन को डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैंने ये आउटपुट निकाला है, आई हैव टू सिमुलेट दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो क्या है आपके पास, there is a least significant bit. Number one, you can see that we are performing this operation from right to left. From right to left means least significant bit से start करके most significant bit तक जाना है. So this is our least significant bit, 1's bit. This is 2's bit. This is 4's bit. This is 8's bit. This is 16's bit. Okay. तो इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये है. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्या है, जो राइट मोस्ट बिट है. सो हम राइट से लेफ्ट में इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं. सो राइट से लेफ्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ मेरे पास एक बिट है 1 जो मैंने रीड किया, इसमें मुझे 1 ऐड करना. इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना. यानी कि इस जो पहली बिट है मेरी, जो मेरी ये पहली बिट है, इस पे जो मेरा प्रोसेस है, इट इज़ ए बिट डिफरेंट. इट इज़ दी फर्स्ट बिट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जिस पे मैं अपना प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ. इसमें मेरा प्रोसेस क्या है कि अगर मुझे 1 मिलता है देन आई हैव टू प्रिंट ए 0 and I have to send a carry to the next bit. Similarly, suppose अगर मेरा नंबर 1 1
0 1 0 सपोज ये होता, ठीक है, एंड देन इफ आई वुड बी एडिंग ए 1, सो मैं क्या करता, देखिए 1 0 इट विल बी 1, सो कैरी 0 विल बी टू द नेक्स्ट बिट, सो ये 1 बिट एज इट इज आ जाती है क्योंकि 0 1 भी 1 रहेगा, फिर अगली बिट को भी कैरी 0 जाती, 0 0 इट विल बी 0, अगले बिट को कैरी 0 जाती 0 1 इट विल बी 1, अगले बिट को कैरी 0 जाती इट विल बी 1। मींस अगर एक तरह से आप देखें तो फर्स्ट बिट पर अगर आपको यहाँ 1 मिला तो आपका रिजल्ट है 0 और कैरी आप एक फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। दूसरा, अगर इस बिट पे 0 है तो आपका रिजल्ट क्या है, 1 है और आप 0 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तो प्रोसेस हुआ फर्स्ट बिट का। एंड सेकंड बिट ऑनवर्ड्स, चूंकि कुछ भी ऐड करने के लिए तो है नहीं मेरे पास, तो अगर मेरे पास कैरी, अब डिपेंड कर रहा है कैरी पे मेरा क्या रिजल्ट आएगा। अगर मेरी कैरी 0 है तो 1 है तो 1 आएगा, देखिए 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, क्योंकि कैरी 0 थी। इस तरह से यहाँ देखिए आप, जहां भी कैरी 0 थी, अगर बिट 0 है तो 0 आया, बिट 1 है तो 1 आया, इज इट। लेकिन अगर कैरी 1 थी तो अगर बिट 1 है तो रिजल्ट 0 आया, और अगर बिट 0 है, देखिए अभी कैरी 1 है, बिट 0 है तो मेरा रिजल्ट क्या है, 1, मींस रिजल्ट रिवर्स हो रहा है। तो यानी कि ये डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि एक तो पहली बिट की प्रोसेसिंग मेरी डिफरेंट है और अदर बिट्स की प्रोसेसिंग डिफरेंट है। उसके बाद जो अदर बिट्स की प्रोसेसिंग है वो डिपेंड कर रही है किस पर, कैरी पर डिपेंड कर रही है कि मेरी प्रीवियस कैरी क्या जनरेट हुई है। तो मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ जो मुझे हेल्प करेगी जो है इस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए। सो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, प्रीवियस कैरी, इसको मैं कह देता हूँ प्रीवियस कैरी, is it, and then bit, what is the bit which I am reading from the input, इसको एक तरह से कह लीजिए input bit, okay, so input bit, and then you are adding 1, so add 1, this you will be doing only for the first bit, okay, and then there will be result। अब result आपके पास जो है वो दो हिस्सों में है, एक तो sum, चूंकि आप ऐड कर रहे हैं तो sum आ रहा है आपके पास, दूसरा क्या आ रहा है, कैरी, कैरी मीन्स न्यू कैरी, न्यू कैरी मीन्स कैरी टू दी नेक्स्ट बिट, की नई नेक्स्ट बिट को कैरी किया जाएगी। अब देखिए अगर आप फर्स्ट बिट पे देखें तो फर्स्ट बिट पे कैरी हमेशा आपकी 0 रहेगी, चाहे केस ये वाला हो, आप देख लीजिए फर्स्ट बिट पे कैरी हमेशा 0 रहती है, ओके, तो केस चाहे ये वाला हो ये वाला हो, तो फर्स्ट बिट पे कैरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सो प्रीवियस कैरी विल बी 0, सो आई एम राइटिंग 2 बिकॉज मेरी बिट क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, सो बिट मेरी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इज इट। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, दोनों ही केस में मुझे 1 ऐड करना है, बट आई हैव टू ऐड 1, ओके। इस केस में रिजल्ट क्या होगा, जो देखिए 0 और 1 ऐड कर रहे हैं, कैरी भी 0 है, सबको ऐड करिए तो रिजल्ट क्या आएगा, सम क्या आएगा, 1 आएगा, एंड न्यू कैरी क्या आएगी, इट विल बी 0, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, चूंकि यहाँ 2 1 आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0, और कैरी टू द नेक्स्ट बिट विल बी 1। इज इट क्लियर और नॉट क्लास, अप टिल नाउ इट इज क्लियर और नॉट क्लास? यस सर, यस सर, क्लियर। पहली बिट का जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट की प्रोसेसिंग हमने इस टेबल में लिख ली। अब अदर बिट्स की प्रोसेसिंग, अदर बिट्स की प्रोसेसिंग सर फर्स्ट बिट की क्या बता दीजिए, सर दोबारा बता दीजिए, फर्स्ट बिट की एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट बिट में अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो है या तो बिट 0 होगी या 1 होगी। प्रीवियस कैरी फर्स्ट बिट के केस में आप देखिए हमेशा आपकी क्या होगी, 0 होगी, सो दैट्स व्हाई प्रीवियस कैरी हम 0 लिख रहे हैं। और फर्स्ट बिट पे हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, वी हैव टू ऐड 1, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन दिस थर्ड कॉलम 1। और एक तरह से हम क्या करें, इन तीनों का एडिशन करके जो हमारे पास सम या कैरी आएगा नेक्स्ट बिट के लिए उसको हम रिजल्ट करें। तो एक तरह से ये दो हमारे जो है वो क्या है, रिजल्ट, ये दो क्या है हमारे रिजल्ट, या जैसे कह दीजिए आउटपुट, ठीक है। तो फर्स्ट बिट क्लियर है। अब सेकंड बिट ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या है, ऐड 1 तो है नहीं, यानी कि यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, इज इट। केवल मेरे पास प्रीवियस कैरी होगी और बिट होगी। अब प्रीवियस कैरी और बिट के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, प्रीवियस कैरी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अभी दो बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हर प्रीवियस कैरी के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास इनपुट बिट या तो 0 होगी या 1 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो सिमिलरली आई विल बी राइटिंग द रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। अगर मेरे पास प्रीवियस कैरी 0 है और इनपुट बिट भी 0 है, देखिए प्रीवियस कैरी 0 है
तो जो इनपुट बिट है वही मेरा सम होगा, इज इट और नॉट? हमने ऑलरेडी यहाँ देख लिया, ऐड करके देख लीजिए, 0 है तो सम 0 ही आएगा, 1 है तो सम 1 ही आएगा। अब दोनों में सम 0 है तो कैरी क्या आएगी? कैरी भी 0 ही आएगी। इन दोनों में हमने क्या किया, सम किया तो सम 1 है बट कैरी क्या आएगी? कैरी भी 0 ही, इस केस में भी 0 ही आएगी। यानी कि अगर आपकी प्रीवियस कैरी 0 है तो जो बिट आपकी इनपुट है वही आपका क्या होगा? आउटपुट होगा, वही आपका क्या होगा? आउटपुट होगा। और कैरी आपकी क्या रहेगी? वही रहेगी जो पहले थी। अब अगर कैरी 1 थी और 0 मिला आपको तो सम 1 हो गया और कैरी 0, यानी कि इस केस में सम आपका बजाय 0 के 1 हो जाएगा, यानी कि इनपुट बिट तो 0 थी लेकिन आउटपुट बिट आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और कैरी जो पहले 1 थी वो अब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर 1 1 वाली सिचुएशन है तो सम आपका 1 होगा और कैरी भी आपकी क्या होगी? 1 होगी। सॉरी, सम आपका 0 होगा और कैरी आपकी क्या होगी? 1, क्योंकि 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1 0, तो 0 विल बी द सम एंड 1 विल बी द कैरी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर होगा? टेबल इज क्लियर? यस सर, क्लियर। अब इस टेबल को हम इंप्लीमेंट करेंगे मशीन के फॉर्म में। देखिए, अब इसमें मुझे दो चीज़ों का डिसीजन लेना है, एक तो स्टेट क्या होंगी और इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होंगे। अब इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा ये तो मैंने देख लिया कि ये मेरी इनपुट बिट है और ये मेरा आउटपुट है, तो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मुझे इन दो कॉलम से पता चल जाएगी, तो इस कॉलम से और एक इस कॉलम से। लेकिन अब ये न्यू कैरी जो है ये भी मेरा आउटपुट है। अब मेरे पास दो आउटपुट देने की कैपेबिलिटी तो है नहीं, मेरी जो दोनों मॉडल्स हैं ये मुझे हर सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देते हैं, तो एक आउटपुट तो ये सम हो गया मेरा, लेकिन ये दूसरा आउटपुट जो कैरी है ये मैं किस फॉर्म में दूँ? सो इसको हम दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं, इसको हम स्टेट के फॉर्म में दे सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मेरी कैरी 0 है तो एक स्टेट होगी, कैरी 1 है तो दूसरी स्टेट होगी। इसी तरह से यहाँ जितनी वैल्यूज होती हैं उतनी स्टेट हम बना सकते हैं, बट चूंकि यहाँ दो ही वैल्यूज होंगी, या तो 0 या 1, तो एक तो 0 कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी और एक 1 कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, दो स्टेट बना ली मैंने, एन सी, दिस रिप्रेजेंट्स नो कैरी, नो कैरी मीन्स 0 कैरी, ओके। दूसरी स्टेट बना ली मैंने ओ कैरी, ओ कैरी, या बल्कि इसको ओसी लिख लेते हैं शॉर्ट में, जस्ट 1 मिनट। इसको हम लिख लेते हैं ओ सी, ओ कैरी, ओके। तो ओ कैरी यानी कि यहाँ कैरी 1, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कैरी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, और ये कैरी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इज इट? ओके। अब हमारी स्टार्ट स्टेट होगी, हमारी स्टार्ट स्टेट है, इसको स्टार्ट कह दीजिए, सिंपली एस लिख दीजिए, तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट हो गई। अब स्टार्ट स्टेट पे मेरा प्रोसेस क्या है? स्टार्ट स्टेट पे मेरा प्रोसेस है कि मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है, और मेरे इनपुट क्या हो सकते हैं? या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, ओके। तो अगर मेरा इनपुट 0 है देन माई आउटपुट विल बी 1 एंड माई कैरी विल बी 0। कैरी 0 मीन्स मैं कौन सी स्टेट पे जाऊंगा? 0 कैरी वाली स्टेट पे जाऊंगा, यानी कि नो कैरी स्टेट पे, इज इट? सो दैट्स व्हाई आई विल मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू हेयर, ओके। किस इनपुट पे? 0 इनपुट पे। आउटपुट क्या है? 1। सो 0 मेरा इनपुट है और आउटपुट मेरा क्या है? 1। तो 0 इनपुट, आउटपुट 1, और किस पे गया? नो कैरी स्टेट पे। यानी कि इस स्टेट पे होने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट बिट के लिए जो कैरी है वो 0 है, तो नेक्स्ट बिट के लिए अगर कैरी मेरी 0 है तो ये जो मेरी प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग में परफॉर्म करूंगा इस नो कैरी स्टेट से, और ये वाली जो प्रोसेसिंग है ये मैं किससे परफॉर्म करूंगा? इस ओ कैरी स्टेट से, इज इट? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरा क्या है, अगर इनपुट बिट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा और साथ में कैरी क्या है? 1। कैरी 1 मीन्स मुझे कौन सी स्टेट पे जाना है? ओ कैरी वाली स्टेट पर जाना है, यानी कि 1 कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग वाली स्टेट पर जाना है, इज इट? सो दैट्स वाई फ्रॉम स्टार्ट अगर मेरा इनपुट 1 है तो मेरा आउटपुट क्या होगा? देखिए, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। और कहाँ गया मैं? देखिए 1 कैरी वाली स्टेट पे, 1 कैरी वाली स्टेट पर आ गया, तो ये दोनों ट्रांजिशन मेरे कंप्लीट होगा ना। अगर मैं नो कैरी वाली स्टेट पे हूँ, यानी कि ये दो जो लाइंस हैं, क्योंकि प्रीवियस कैरी मेरी ये, यानी कि मैं पहले से इस स्टेट में मौजूद हूँ, अब मुझे या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अब 0 या 1 मिलेगा तो उसमें मुझे क्या एक्शन लेना है वो मुझे इन दोनों से पता चलेगा, ओके। अगर मुझे 0 मिलता है तो 0 आउटपुट होगा, 1 मिलता है तो 1 ही आउटपुट होगा, और स्टेट क्या रहेगी? यही 0 वाली स्टेट रहेगी, यानी कि नो कैरी वाली स्टेट ही रहेगी।
तो यानी कि एक तरह से 0 और 1 दोनों पे इसमें मुझे क्या मिलेगा, एक सेल्फ लूप मिलेगा, यानी कि 0 है तो 0 ही आउटपुट, 1 है इनपुट तो 1 ही आउटपुट। आप देखिए 0 इनपुट था तो 0 ही आउटपुट, 1 इनपुट था तो 1 ही आउटपुट, और स्टेट मेरी कौन सी रही, वही 0 वाली स्टेट रही, 0 कैरी वाली स्टेट। इज इट? दैट्स व्हाई आई हैव मेड ए सेल्फ लूप हियर। इट इज नॉट ए सिंगल सेल्फ लूप, अगेन इट इज 2 सेल्फ लूप्स, एक 0/0 और एक 1/1। इज इट? देन अब मैं इस वाली जो है फंक्शनिंग पे आता हूँ, जो कि मेरी प्रीवियस कैरी 1 होने पे, यानी कि 1 कैरी वाली स्टेट में अगर मैं हूँ, ठीक है। अगर मुझे 0 मिलता है तो एक 1 आउटपुट होगा, ठीक है, और कहाँ जाऊंगा, 0 वाली स्टेट पे जाऊंगा, 0 वाली यानी कि 0 कैरी वाली स्टेट पे। सो यानी कि 1 कैरी वाली स्टेट से 0 कैरी वाली स्टेट पे एक ट्रांजिशन होगा मेरा, किस पर, इनपुट 0 पे, और आउटपुट क्या होगा, 1। So input is 0 and output is 1, and from O carry state यानी कि 1 कैरी वाली स्टेट से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 0 कैरी वाली स्टेट पर। इज इट? देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखता हूँ, अगर मेरा 1 इनपुट था तो आउटपुट 0 होगा, लेकिन स्टेट कौन सी है, वो 1 कैरी वाली स्टेट है, यानी कि वही स्टेट जिसमें मैं था। यहाँ 1 कैरी वाली स्टेट में था, यहाँ भी 1 कैरी वाली स्टेट में ही हूँ, बस इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो गया, यानी कि देयर विल बी ए सेल्फ लूप ऑन 1/0, यानी कि 1 इनपुट है तो 0 आउटपुट हो गया। अब देखिए 1 इनपुट था तो 0 आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे के सारे ट्रांजिशन इसके ड्रॉ कर लिए, एंड दिस इज अ मशीन विच विल वर्क एज एन इंक्रीमेंटर, क्योंकि देखिए इंक्रीमेंटर का जो मेरी फंक्शनिंग थी वो इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट की थी सारी की सारी, और इस ट्रांजिशन टेबल को मैंने क्या किया, इस डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यस सर एक बार बता दीजिए, इसमें क्या नहीं समझ में आया, बताइए। सेकंड लास्ट वाली इनपुट लाइन समझ में नहीं आई। 1 इनपुट है या 0 इनपुट है, फाइनल स्टेट भी 0 है, न्यू कैरी, वो बता दीजिए सेकंड देखिए लास्ट पॉइंट जो बोला आपने। देखिए ये जो पहली 2 लाइनें हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट बिट की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं फर्स्ट बिट पे क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट बिट पे देखिए मेरी प्रीवियस कैरी 0 होगी। देखिए मैंने देखा था, चाहे मेरा नंबर ये था, देखिए प्रीवियस कैरी 0 थी, चाहे मेरा नंबर ये था, प्रीवियस कैरी क्या थी, 0 थी। इज इट? और इसमें मैं क्या कर रहा था, 1 ऐड कर रहा था। ओके, सो इसलिए 1 ऐड वाला कॉलम मैंने आपका ये बना लिया, यानी कि 1 ऐड कर रहा था। अब ये 1 किस में ऐड कर रहा था, देखिए अगर मेरा ये वाला केस था तो मेरी इनपुट बिट क्या थी, 1 थी। अगर ये वाला केस था तो इनपुट बिट क्या थी, 0 थी, यानी कि मेरी इनपुट बिट क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो वो मैंने यहाँ लिखा है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इज इट? यानी कि ये पॉसिबिलिटीज थी फर्स्ट बिट के लिए। ठीक है, अब इन पॉसिबिलिटीज में रिजल्ट क्या आएगा, देखिए मेरा प्रीवियस कैरी 0 है, इनपुट बिट 0 है, और मुझे इसमें 1 ऐड करना है। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तभी तो मेरा रिजल्ट आएगा। तीनों को ऐड कर लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, सम विल बी 1, ओके, एंड न्यू कैरी विल बी 0। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, आउटपुट हो गए। अब सम 1 है, न्यू कैरी आपकी 0 है। इज इट? इसी तरह से दूसरी लाइन के केस में क्या होगा, 0 1 1 आप ऐड कर रहे हैं, तो या 1 1 ऐड करेंगे तो आपका सम क्या हो जाएगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगी, 1। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। अब मैंने आपको ये बताया कि आपका जो सम है ये तो आउटपुट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इनपुट और एक आउटपुट की कैपेबिलिटी है, उसको आप सम को आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो न्यू कैरी है, ये वाला जो आउटपुट है, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जब मेरी कैरी 0 है तो मैंने उसको कहा नो कैरी स्टेट। अगर मेरी कैरी 1 है तो उसको मैंने कहा ओ कैरी स्टेट, या 1 कैरी स्टेट कह लीजिए। ओके, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसमें से नो कैरी और ओ कैरी हटाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इट इज सिंपली 0 कैरी स्टेट एंड 1 कैरी स्टेट, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने स्टेट बना दी। ठीक है, अब चूंकि मेरी स्टार्ट बिट है, स्टार्ट पहली बिट रीड करने के बाद मैं इनमें से किसी स्टेट पर पहुंचूंगा। ओके, तो इसलिए मैंने क्या बनाया, एक स्टार्ट स्टेट बनाई। अब स्टार्ट स्टेट में अगर मैंने 0 रीड किया तो स्टार्ट स्टेट में मैंने 0 रीड किया, मेरा इनपुट क्या है, 0 है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, सम से देखूंगा मैं, आउटपुट 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 लगा दिया। उसके बाद 0 कैरी वाली स्टेट में जा रहा हूँ, तो इसीलिए 0 कैरी वाली स्टेट में मैंने ट्रांजिशन बनाया। स्टार्ट से कहाँ गया मैं, 0 पे, 0 कैरी वाली स्टेट पर। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा सेकंड कॉलम था, यानी इनपुट 1 था, तो मेरा रिजल्ट भी, रिजल्ट क्या आना था, रिजल्ट 0 आना था। तो इसीलिए अगर इनपुट 1 था तो रिजल्ट क्या आया, 0 आया, और साथ में स्टेट कौन सी होगी, 1 कैरी वाली स्टेट होगी। देखिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, ट्रांजिशन कहाँ ले गया अपना, इसको 1 कैरी वाली स्टेट पे ले गया। तो पहले 2 ट्रांजिशन आपको ये क्लियर हुए। इसके बाद अब यहाँ मेरे पास प्रीवियस कैरी अगर 0 है,
प्रीवियस कैरी अगर 0 है यानी कि मैं 0 कैरी वाली स्टेट में हूँ, और प्रीवियस कैरी अगर 1 है तो यानी कि 1 कैरी वाली स्टेट में हूँ। वो किससे डिसाइड होगा? इस फर्स्ट बिट से डिसाइड हो गया होगा कि मैं या तो इस 0 कैरी वाली स्टेट पे पहुंच गया हूँ या इस 1 कैरी वाली स्टेट पे पहुंच गया हूँ। अब अगर मैं 0 कैरी वाली स्टेट में पहुंचा तो यानी कि प्रीवियस कैरी मेरी 0 थी, तो आगे मुझे इनपुट में क्या मिलेगा? या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। लेकिन अब ऐड कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड बिट पे ऐड करने के लिए कुछ नहीं, केवल कैरी है और बिट है। केवल कैरी है और बिट है, दो चीजें। केवल कैरी है इस केस में भी और बिट है, सेकंड पोजीशन ऑनवर्ड्स, इज इट? तो अब मैंने क्या किया, इसलिए यहां कुछ भी नहीं लिखा। मेरे पास केवल ये दो सिचुएशन है, 0 0। अगर 0 0 तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगी, इज इट? अगर 0 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 0 होगी। अगर 1 0 है तो भी सम 1 होगा, कैरी 0 होगी। 1 1 है तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगी। तो इससे मुझे आउटपुट और मेरी किस स्टेट में मुझे मूव करना है वो डिसाइड हो गया। तो अब जब मैं प्रीवियस कैरी वाली स्टेट में हूँ तो दोनों ही केस में, चाहे मेरी इनपुट बिट 0 है या 1 है, मैं 0 वाली स्टेट पर ही रहूंगा, 0 कैरी वाली स्टेट पर ही रहूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ लूप बनाया 0 पे भी और 1 पे भी। अब 0 पे आउटपुट क्या है, यहाँ चेक करिए। 0 पे आउटपुट 0 है, 1 पे आउटपुट 1 है। 0 पे आउटपुट 0, 1 पे आउटपुट 1। इज इट क्लियर? तो ये मेरे ये ट्रांजिशन डिजाइन हो गया। तो ये दोनों रोज मैंने इंप्लीमेंट कर दी। अब इस वाले पे आता हूँ कि अगर मेरी प्रीवियस कैरी 1 थी कि यानी कि मैं इस वाली स्टेट पे था, यानी कि मैं इस 1 कैरी वाली स्टेट पे था, तो उसमें भी अगेन मेरे या तो इनपुट 0 होगा या 1 होगा। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा क्या आउटपुट आएगा और किस स्टेट पे जाऊंगा मैं देखता हूँ। अगर मेरा 0 इनपुट था तो मुझे किस स्टेट पे जाना है? 0 कैरी वाली स्टेट पे। तो इसलिए 0 इनपुट पे मैं किस पे गया? 0 कैरी वाली स्टेट पे। ओके, 1 कैरी वाली स्टेट से कहाँ मूव कर गया? 0 कैरी वाली स्टेट पे मूव कर गया, 0 इनपुट पे। और उस पर आउटपुट क्या होना था? 0 इनपुट था तो आउटपुट क्या था मेरा? 1। तो इसलिए 0/1, तो आउटपुट मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह से अगर मेरा 1 इनपुट था तो मुझे कहाँ रहना था? 1 कैरी वाली स्टेट पे ही रहना था। तो इसलिए मैंने सेल्फ लूप बनाया। 1 इनपुट पे मैंने क्या बनाया? सेल्फ लूप बनाया, ताकि मैं 1 कैरी वाली स्टेट पे ही स्टे करूं। और अगर 1 मेरा इनपुट था तो 0 मेरा आउटपुट था, यहां से देख सकता हूं। तो इसलिए मैंने यहां क्या लिखा? 0 लिखा। तो इस तरह से मैंने अपनी ये मशीन कंप्लीट की, मशीन बनाई। नाउ इट इज क्लियर क्लास? यस सर, यस सर। नाउ इट इज क्लियर। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको जो भी एनालिसिस करना है पहले कर लेना। आप जो प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट करिए। अब देखिए, इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। नॉर्मली हम अपने किसी भी एफए को जब इनपुट स्ट्रिंग देते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, यानी कि सबसे पहले ये वाली बिट रीड करेंगे, फिर ये वाली रीड करेंगे, फिर ये वाली करेंगे, फिर ये वाली करेंगे, फिर ये वाली करेंगे। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, अपने एफए को इनपुट रिवर्स करके देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेस राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ओके, यानी कि अगर मेरा इनपुट ये था 10011, तो मैं एक्चुअली जो इसको फीड करूंगा, इसको फीड करूंगा इनपुट, वो क्या इनपुट फीड करूंगा? 11001, यानी कि पहला 1 ये, दूसरा 1 ये, फिर 0 ये, फिर अगला 0 ये, फिर लास्ट 1 ये, यानी कि रिवर्स करके फीड करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसको रिवर्स करके फीड करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? इसको देखिए, इस पे एग्जीक्यूट करिए। रिवर्स दिया आपने तो सबसे पहले आप इस 1 को रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले आप इस वाले 1 को रीड करेंगे। ओके, 1 आया तो आप स्टार्ट स्टेट से कहाँ मूव करेंगे? इस वाले के थ्रू 1, यानी कि आउटपुट आपका 0 आएगा और आप 1 कैरी पे मूव कर जाएंगे। यानी कि आउटपुट आपका 0 आया और आप 1 कैरी वाले पर मूव कर गए, यानी कि अब आप इस स्टेट पर हैं। इस स्टेट में आप क्या रीड करेंगे? सेकंड लेटर। सेकंड लेटर क्या है? ये वाला, ये 1, इज इट? अब इसमें 1 मिला तो यानी कि 1 पे ही रहे, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आया? 0 आया और आप इसी स्टेट पर मूव किए, तो रिजल्ट आपका क्या आया? 0 आया और आप इसी 1 कैरी वाली स्टेट पर ही रहे। अब यहाँ आप अगला लेटर रीड करेंगे इनपुट में, दैट इज अ 0। सो जैसे ही 0 आया तो आपका ये वाला ट्रांजिशन फॉलो करेगा। 0 से आप कहाँ मूव करेंगे? 0 कैरी वाली स्टेट में मूव करेंगे, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? 1। सो आउटपुट आपका 1 आ गया और अब आप किस स्टेट में? 0 कैरी वाली स्टेट पर हैं। अब इस स्टेट में आप अगला लेटर पढ़ेंगे। अगला लेटर क्या है? इट इज अगेन ए 0। सो अगला लेटर अगर 0 है तो 0 ही आउटपुट आना और आपको उसी स्टेट पर रहना, इज इट? अगला लेटर 0 है तो 0 ही आउटपुट आएगा, उसी स्टेट पर रहेंगे। तो 0 ही आपका आउटपुट आया और आप उसी स्टेट पर है, 0 कैरी वाली स्टेट पर। इसके बाद अगला लेटर रीड करेंगे, दैट इज द लास्ट लेटर 1। ओके, तो 1 पे 1 ही आउटपुट आएगा, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और उसी स्टेट पर रहेंगे। तो 1 पे 1 ही आउटपुट आया और आप उसी स्टेट पर रहे, इज इट? अब आपका आउटपुट क्या आया? बेसिकली आउटपुट आया ये
लेकिन आप क्या करेंगे, आउटपुट को रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट रिवर्स करके दिया था, तो करेक्ट आउटपुट आपका कैसे आएगा, रिवर्स करके आएगा। तो करेक्ट आउटपुट आप जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 00, 00। सो 1 0 1 00 जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो आपका आ गया। इज इट क्लियर कि मैं इस मशीन को अपना इनपुट कैसे फीड कर रहा हूँ, डायरेक्टली फीड नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स करके फीड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रोसेस जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया है वो राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो इसलिए इस मशीन को इनपुट भी मेरा राइट टू लेफ्ट मिलना चाहिए। बट एक्चुअली में तो मैं अपना जो रिजल्ट है वो कैसे देखूंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनपुट को रिवर्स किया, इनपुट को रिवर्स किया, उस रिवर्स इनपुट को फीड किया मशीन को, उससे जो आउटपुट आया वो आउटपुट को मैंने क्या किया, फिर रिवर्स किया, और उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया दैट विल बी माय फाइनल रिजल्ट। इज इट ओके और नॉट क्लास? I hope you have understood how we have designed it and how this machine is functioning. Clear है क्लास? Yes, sir. अब इसको एक काम करते हैं, एक इनपुट और देते हैं। Suppose input is 1 1 1. Give this input to this machine. अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, और रिवर्स करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा। इज इट? यानी कि इसको आप क्या फीड करने जा रहे हो, 1 1 1 फीड करने जा रहे हो। ओके, सो स्टार्ट स्टेट पे सबसे पहला सिंबल 1। ओके, स्टार्ट स्टेट पे सबसे पहला सिंबल 1। आप कहाँ पहुंचेंगे, 1 कैरी वाली स्टेट पे पहुंचेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी ए 0, रिजल्ट विल बी ए 0। इज इट? उसके बाद आप 1 कैरी वाली स्टेट पे हैं, अगला सिंबल रीड करें, इट इज ऑल्सो 1। ओके, इस पे क्या है कि इसी स्टेट पर रहना, 1 पे देखिए, इसी स्टेट पर रहना, और रिजल्ट क्या आएगा, 0। सो रिजल्ट तो 0 प्रिंट हुआ और आप स्टिल 1 कैरी वाली स्टेट पर ही हैं। इज इट? उसके बाद यहाँ फिर अगला 1 रीड कर रहे हैं, 1 रीड करें तो वापस ये ट्रांजिशन यूज होगा, यानी 1 की जगह क्या आएगा आउटपुट, 0, और 1 कैरी वाली स्टेट पे ही करेंगे। अब आपका चूंकि लास्ट इनपुट लेटर रीड हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रिंट हो गया, तो आपकी जो फंक्शनिंग है इसकी फिनिश हो गई। यानी कि 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आया, 0 0 0, जबकि 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब इसको आप रिवर्स कर लें वापस, रिवर्स, अगर रिवर्स भी कर लें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 ही आएगा। इज इट? सो यानी कि 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आया, 0 0 0। क्या ये सही है? रिजल्ट क्या आना चाहिए था, अगर 1 1 1 में मैं 1 ऐड करता, इंक्रीमेंट करता, तो क्या आता, 1 1 0, ठीक है, कैरी 1 टू नेक्स्ट बिट, 1 1 अगेन 0, कैरी 1 टू नेक्स्ट बिट, 1 1 0, अगेन कैरी 1 टू दी नेक्स्ट बिट। सो ये एक्स्ट्रा बिट यानी कि 1 ट्रिपल 0 आंसर आना चाहिए था। इज इट? लेकिन अब चूंकि हमारी ये तो मशीन है, और मशीन में क्या है, जो मिले मशीन का आउटपुट है उसकी लेंथ वही होगी जो इनपुट की लेंथ है। इज इट? तो 3 लेंथ है इसकी, तो रिजल्ट की लेंथ भी क्या होगी, 3। तो आपको केवल ये वाला हिस्सा मिल रहा है रिजल्ट का, ये वाला हिस्सा नहीं मिल रहा। इज इट? लेकिन ये वाला हिस्सा आपके पास है। आप देखिए, जब भी एंड करेंगे किसी प्रोसेस इनपुट स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग पे, तो या तो 0 कैरी वाली स्टेट में एंड करेंगे या 1 कैरी वाली स्टेट में एंड करेंगे। अगर आप 0 कैरी वाली स्टेट में एंड करते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन जब भी 1 कैरी वाली स्टेट में एंड करते हैं तो हमेशा इसका मतलब क्या है कि आपकी नेक्स्ट बिट को कैरी 1 गई, यानी कि आपका रिजल्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है। सो बेसिकली बाय एंडिंग इन दी 1 कैरी स्टेट यू सिंपली मीन्स दैट व्हाटसएवर इज द रिजल्ट, उसके पहले उसके जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप एक 1 को अपेंड कर दीजिए, दैट विल बी द रिजल्ट। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? Yes, sir. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कई बार आप क्या करेंगे, 1 1 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, आप कहेंगे 0 0 आ रहा है तो रिजल्ट गलत है, जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट की लेंथ बढ़ जाएगी एंड वी डोंट हैव द फैसिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ हियर। सो वो हमें किससे पता चलेगा कि हम किस स्टेट में एंड कर रहे हैं। जब भी हमारी ये लेंथ बढ़ेगी, इस तरह का सिम्टम होगा, हम हमेशा कहाँ एंड करेंगे, 1 कैरी स्टेट में एंड करेंगे। आप देखिए यहाँ भी इस केस में हमने कहाँ एंड किया है, 1 कैरी वाली स्टेट में एंड किया है। इज इट क्लियर? ओके, so now I'm moving to the next example, that is
वी हैव टू डिजाइन ए मिले मशीन फॉर एडिंग 2 बाइनरी नंबर्स। अभी तक हमने देखिए 2 मशीन्स बनाई है। पहला हमने क्या बनाया है, वंस कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हमने बनाया इंक्रीमेंटर कि ए 1 ऐड कर सकें, इज इट। अब हम बनाने हैं, वी हैव टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स। अगर हमारे पास 2 बाइनरी नंबर ऐड करने हैं तो 2 बाइनरी नंबर्स किस तरह से ऐड होंगे हमारे पास। देखिए सपोज मेरे पास 1001 है, ओके, एंड इसमें सपोज मुझे 101 ऐड करना है, इज इट। अब देखिए 1001 जो है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डेसिमल में 9 के इक्विवेलेंट होगा, और 101 जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 5 के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, इज इट। आप देखिए कि इसको मैं ऐड करूं तो सबसे पहले देखिए अगेन चूंकि ऐड कर रहा हूं तो कैरी तो आएगा ही आएगा। सो इनिशियल कैरी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। इनिशियल कैरी हमेशा फर्स्ट बिट पे क्या होगी, 0 होगी। तो आप इन बिट्स को ऐड करिए, 1 1 इट विल बी 0 एंड 1 टू दी नेक्स्ट कैरी, इज इट। अब 1 0 0, ठीक है, इनको ऐड किया तो 1 एंड 0 टू दी नेक्स्ट कैरी। 0 0 1 इट इज 1 एंड 0 टू दी नेक्स्ट कैरी। 0 1 it is 1 and 0 to the next carry, is it? So this will be the result, 111 0। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट विल बी इक्वल टू 14 कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लास, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज माई एग्जाम्पल इज 101 एंड 110, इनको मुझे ऐड करना है। 101 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है, और 110 किसके इक्विवेलेंट है, 6 के इक्विवेलेंट है। मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 11, इज इट। अब मैं इसको वापस वही करता हूँ, इधर की तरफ कैरी ले लेता हूँ। इनिशियल कैरी मेरी 0 होगी, इज इट। 0 1 0 इसको ऐड करूंगा तो मेरा 1 आएगा, 0 टू द नेक्स्ट कैरी। 0 0 1 अगेन 1 विल बी द सम एंड 0 टू द नेक्स्ट कैरी। अब 0 1 1 यानी कि सम विल बी 0 एंड 1 टू द नेक्स्ट कैरी। अब 1 नेक्स्ट कैरी पे गया तो यानी कि 1 मेरा यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि मैं वही ओ कैरी या 1 कैरी वाली स्टेट में एंड करूंगा। तो आप देखिए एक्चुअल तो रिजल्ट मेरा आउटपुट में मुझे ये मिलेगा केवल, लेकिन ये 1 किससे मिलेगा मुझे वापस, कि किस, अगर मैं 1 कैरी वाली स्टेट में एंड कर रहा हूँ तो यानी कि मैं रिजल्ट क्या कंसीडर करूंगा, 1011, और 1011 इज इक्वल टू 11 और नॉट। यस इट इज क्लियर। सो एक तरह से मैं यहाँ किस स्टेट में एंड कर रहा हूँ, 1 कैरी स्टेट में। आप देखिए यहाँ भी अगर मैं अगली वाली कैरी लिखता तो यहाँ 0 लिखता, ये मेरी कैरी वाली स्टेट है। तो यहाँ मुझे जहाँ अगर 0 कैरी है तो मुझे केवल पूरे रिजल्ट को, जो भी मेरा आउटपुट आया उसको लेना है। और अगर मैं 1 कैरी वाली स्टेट में एंड कर रहा हूँ तो कैरी के साथ कंप्लीट आउटपुट मेरे को लेना है। बस ये जैसा हमने पिछले मशीन में किया था वही इस मशीन में भी करना है। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? यस सर। ओके, अब इसी प्रोसेस को मुझे क्या करना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। बाइनरी एडिशन तो आता है ना आपको, इज इट? बाइनरी एडिशन तो आता है ना। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, केवल बाइनरी एडिशन किया, इज इट। तो आप देखिए जैसे अगर 101 है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, 110 है 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, ऊपर कैरी लिए, इनिशियल कैरी 0 है, 0 1 0 ऐड किया तो 1 आया, ठीक है, और अगली बिट की कैरी क्या गई 0, फिर 0 0 1 है, ये 3 बिट ऐड कर रहा हूँ तो वापस सम क्या आएगा मेरा 1 आएगा, और 0 कैरी नेक्स्ट बिट हो जाएगी। अब 0 1 1, अब देखिए यहाँ मेरे पास 2 1 आ गए, यानी कि सम मेरा क्या होगा 0 होगा और 1 मेरी नेक्स्ट कैरी बिट पे चला जाएगा, इज इट। तो आप देखिए रिजल्ट एक्चुअली तो मुझे चूंकि 3 बिट के थे मेरे, तो 3 बिट का रिजल्ट मिला मेरे को, इज इट, 3 बिट का ही रिजल्ट मिला। लेकिन चूंकि मैं 1 कैरी वाली स्टेट में एंड कर रहा हूँ, सो जब भी मैं 1 कैरी वाली स्टेट में एंड करूंगा मुझे अपने एक्चुअल रिजल्ट को पाने के लिए उस कैरी वाली बिट को भी रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो माई एक्चुअल रिजल्ट इज 1011 एंड इट इज इक्वलेंट टू 11, which is the required result. आप 011 देखें तो it is not equivalent to 11. 011 is equivalent to 3 only. Okay, अगर आप इस 1 को कंसीडर ना करें तो it is equivalent to 3 only. 8 किसकी वजह से ऐड होगा इसमें, इस कैरी बिट की वजह से, जो कि आपकी 4th पोजीशन पे है, या इसको 0th कहें, इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें, तो 3rd पोजीशन पे है। तो 2 to the power 3 यानी कि 8 will be added because of this position, bit position.
ओके, सो यानी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा 11। जबकि यहाँ आप देखिए, यहाँ आपके पास क्या था, क्योंकि आपका 4 बिट का नंबर था, ठीक है, यहाँ आपके पास 3 बिट का नंबर था। तो नॉर्मली जो भी लार्जर आपका बिट साइज है, उसी बिट साइज में आप अपने सारे नंबर्स को कर सकते हैं कन्वर्ट। जैसे 101 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0101 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जीरोज लेफ्ट की साइड में पैड कर लिए ताकि साइज इक्वल हो जाए। साइज इक्वल हो जाए तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे 1 इनपुट है, 1 इनपुट है, या 0 इनपुट है, या 0 इनपुट है, 0 इनपुट है, 1 इनपुट है, 1 इनपुट है और 0 इनपुट है, लाइक दैट। इस तरह से मैं कर रहा हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ इट इज क्लियर क्लास? यस सर। जो सिंपल दो बाइनरी नंबर्स के एडिशन का प्रोसेस है, वही प्रोसेस मैंने यहाँ किया और कुछ भी नया नहीं किया है। इज इट? अब इस प्रोसेस को मुझे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करना है कि इसकी एक टेबल के फॉर्म में मुझे बना देना, ताकि उस टेबल को मैं अपनी मशीन में कन्वर्ट कर सकूं। अब यहाँ मेरे पास प्रॉब्लम ये आएगी, चलिए एक बार पहले बना लेते हैं। एक मैं बनाता हूँ प्रीवियस कैरी, इसको मैं लिख लेता हूँ PC। इज इट? सो इट इज माई प्रीवियस कैरी। ओके, दूसरा मेरा हो गया बिट 1, बिट 1। थोड़ा लाइनें सही नहीं बन रही हैं। बिट 2, ओके, एंड देन न्यू कैरी NC एंड सम। ये दोनों मेरे वही आउटपुट कॉलम्स होंगे और ये मेरे क्या हैं, दोनों इनपुट कॉलम होंगे। बिट 1 क्या आएगी, मेरी पहले नंबर की बिट से बिट आएगी। ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो नंबर है जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ, और बिट 2 किससे आएगी, दूसरे नंबर की बिट से आएगी। इज इट और नॉट? क्लियर है? तो अब जो है बिट 1 पहले नंबर से आ रहा है और बिट 2 दूसरे नंबर से है। ये मेरे दो इनपुट हो गए और दो ही आउटपुट है मेरे पास। एक जो है नई न्यू कैरी, यानी कि मेरी NC नहीं लिखता, इसको मैं न्यू कैरी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यू कैरी, ठीक है, और ये मेरी क्या है, प्रीवियस कैरी PC। ये मेरा सम है। अब अगेन दो आउटपुट है मेरे पास जैसे पिछली बार थे, तो सम वाला आउटपुट तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्चुअल मेरे आउटपुट से, और न्यू कैरी वाला किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्टेट से, जैसे पिछली बार किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ मेरे पास इनपुट भी सिंगल नहीं है, इनपुट भी दो हैं, एक बिट 1 और एक बिट 2। एक क्या है, बिट 1 और एक है बिट 2। तो अब दो इनपुट देने की फैसिलिटी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो एक ही इनपुट सिंबल है जिसको मैं दे सकता हूँ, जबकि मुझे इनपुट क्या देना है, दोनों बिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करते हैं कि हम क्या करते हैं कि बिट 1 और बिट 2 के मेरे कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए बिट 1 भी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ऐसी बिट 2 भी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मैं क्या करता हूँ, इस कंपोजिट कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सिंबल एज्यूम कर लेता हूँ। मींस 0 0 विल बी ए सिंगल सिंबल, 0 1 will be a single symbol, 1 0 will be a single symbol and 1 1 will be a single symbol। तो मेरे इनपुट सिंबल्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यानी कि अब मैं जो सिग्मा है उसको 0,1 नहीं लूंगा, उसको मैं क्या लूंगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और आउटपुट मेरा क्या आएगा, आउटपुट चूंकि केवल सम है मेरे पास, सो आउटपुट मेरा क्या आएगा, यानी कि आउटपुट का जो मेरा अल्फाबेट होगा दैट विल बी 0 और 1। इज इट? तो ये मेरा इनपुट सिंबल का सेट ये है और आउटपुट सिंबल का सेट ये है। बस थोड़ी सी ये ट्रिक हमने यहाँ यूज की है, बाकी सब कुछ सिंपल है। अब मैं इसकी जल्दी से टेबल बना देता हूँ। देखिए प्रीवियस कैरी क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। ओके, सो 0 होगी तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे 4 इनपुट होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसलिए मैं इसको 4 बार लिख लेता हूँ। इसी तरह से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 इनपुट होंगे। इज इट? तो 4 बार इसको लिख लिया। इज इट? अब उसके बाद 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बिट 1 क्या होगी, 0 हो सकती है, ये 1, ये भी 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये 1 हो सकता है। तो चारों कॉम्बिनेशन में लिख दी। तो देखिए जब भी ये 0 0 है तो मेरा इनपुट क्या होगा, ये वाला 0 0। जब मेरा ये 0 1 है तो मेरा इनपुट क्या होगा, 0 1। जब मेरा 1 0 है तो मेरा इनपुट क्या होगा, 1 0। और जब ये 1 1 है तो मेरा इनपुट क्या होगा, 1। इज इट? तो ये मेरे इनपुट हो जाएंगे इस हिसाब से। इसी तरह से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इज इट? अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे केवल देखना है मेरा रिजल्ट क्या होगा। अगर तीनों 0 है तो मेरी कैरी भी 0 होगी, सम भी 0 होगा।
अगर 0 0 1 है तो कैरी तो 0 होगी, सम 1 होगा। 0 1 0 है, चूंकि एक ही 1 है देखिए, तो कैरी 0 होगी, सम 1 होगा। 0 1 1, अब 2 1 आ गए मेरे पास, तो मेरी कैरी 1 हो जाएगी और सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट? अब 1 0 0, एक 1 है तो कैरी 0 होगी, सम 1 होगा। 1 0 1, 2 1 है तो देखिए कैरी 1 हो जाएगी और सम 0 हो जाएगा। 1 1 0, अगेन 2 1 है मेरे पास, तो कैरी 1 हो जाएगी, सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 1 1, तीनों ही 1 है, तो यानी कि कैरी भी 1 होगी और सम भी 1 होगा। इज इट क्लियर? सो मैंने सिंपल ये टेबल बना ली। टेबल क्लियर है आपको क्लास? टेबल क्लियर है? यस सर। ओके, अब टेबल क्लियर है तो अब इससे जो है मैं मशीन बनाता हूँ। अब मशीन अगर बनाऊं तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है स्टेट कौन सी होंगी। आप देखिए इस 2 स्टेट तो मुझे दिखाई दे रही हैं इस न्यू कैरी से, क्योंकि न्यू कैरी इज ऑल्सो एन आउटपुट, और इसको मैं किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेट के फॉर्म में। तो एक 0 कैरी के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी, एक 1 कैरी के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी। ओके, सो मैं एक स्टेट लिख लेता हूँ 0 कैरी के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट, और एक स्टेट लिख लेता हूँ 1 कैरी के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। अब ये चेक करता हूं इन दोनों में से कोई स्टेट मेरी स्टार्ट स्टेट होगी क्या? कौन सी स्टेट स्टार्ट स्टेट होगी? हो सकती है इनमें से कोई स्टार्ट स्टेट क्या नहीं, या अलग से स्टार्ट स्टेट बनानी पड़ेगी क्लास? सर जीरो कैरी वाली। यस, ओ कैरी वाली जो 0 कैरी वाली जो स्टेट है ये स्टार्ट स्टेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोसेस को देखिए। देखिए आपका प्रोसेस ये है, चाहे आप इधर देखिए, दोनों ही केस में स्टार्टिंग में फर्स्ट बिट पे आपकी कैरी क्या होती है, 0 होती है। फर्स्ट बिट पे कैरी क्या होती है, 0 होती है। इज इट? और उसके बाद आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो यानी कि आप फर्स्ट बिट पे अगर अपनी कैरी को 0 एज्यूम कर रहे हैं तो 0 कैरी वाली स्टेट आपकी क्या होगी, स्टार्ट स्टेट होगी। बाकी सारा प्रोसेस के बाद जाएगा। इज इट? अब 0 कैरी वाली स्टेट है आप में आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें आपको इनपुट क्या मिल सकते हैं, या तो 0 0 मिलेगा यानी कि पहली बिट में 0 दूसरी बिट में 0, या 0 1 मिलेगा यानी कि पहली बिट में 0 और दूसरी बिट में 1, या 1 0 या 1 1, यानी कि अब आप इन 4 लाइनों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जब आप 0 कैरी वाली स्टेट में है। तो इनपुट आपके क्या है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1। सपोज आपका इनपुट 0 0 है तो आपकी नई स्टेट क्या होगी, 0 कैरी वाली स्टेट ही नई स्टेट होगी। ठीक है, और सम वाली क्या होगी, ये 0 होगा। बल्कि आप अगर ध्यान से देखें इस कॉलम को तो 0 0 0 1 और 1 0, इन तीनों ही स्थितियों में आप इस 0 कैरी वाली स्टेट पर ही रहेंगे। इज इट और नॉट? क्लियर है? तो यानी कि मैंने एक लूप बनाया, सेल्फ लूप, और इसमें मेरे 3 इनपुट आएंगे, एक तो 0 0, एक 0 1 और एक 1 0। अब 0 0 आएगा तो आउटपुट क्या है, 0। इधर देखिए सम पे, तो मैंने क्या लिखा, 0 0 ओब्लिक 0 कॉमा। अगर 0 1 मेरा इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। सो 0 1 ओब्लिक 1 कॉमा। 1 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। सो 1 0 ओब्लिक 1। इज इट? तो ये आपके 3 ट्रांजिशन, ये 3 लाइन आपने इंप्लीमेंट कर दी। अब रहेगी चौथी 1 1 वाली। अगर 1 1 इनपुट है तो आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है न्यू कैरी वाली स्टेट पे। इज इट? सो यानी कि 1 पे आपका जो ट्रांजिशन होगा 0 कैरी वाली स्टेट से क्या होगा, 1 कैरी वाली स्टेट पे। सो 1 1 अगर आपका इनपुट है तो आप इधर मूव करेंगे। इज इट? अब 1 1 अगर आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या है, सम में देखेंगे 0। ओके, सो 1 1 ओब्लिक 0। इज इट? तो ये इस तरह से आपका जो है, आपने ये चारों लाइंस जो है इंप्लीमेंट कर दी। इसी तरह से आप 1 कैरी वाली स्टेट में, यानी कि ये वाली चारों लाइन आपने इंप्लीमेंट करनी है। सो अगेन 0 0 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप 0 पर जाएंगे, बाकी 0 1 1 0 और 1 1, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आप किस पर रहेंगे, 1 वाले पे ही रहेंगे। ठीक है, आप 1 वाले पे हैं, 1 वाले पे ही रहेंगे। यानी कि मैंने क्या बनाया, वापस एक लूप बनाया, और इस लूप के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा मेरा, एक तो 0 1 आएगा, एक 1 0 आएगा और एक 1 1 आएगा। तो देखिए 0 1 अगर है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इधर सम में देखिए 0 0 1 ओब्लिक 0। अगर 1 0 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। सो 1 0 है तो आउटपुट क्या आना है, 0। और 1 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। सो 1 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। अब रह गई ये चौथी 0 0 वाली। 0 0 में क्या है कि अगर 0 0 तो आप 0 वाली स्टेट पर मूव करेंगे, यानी कि एक तरह से आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अगर 0 0 मिलता है। ठीक है,
ओब्लिक, अब 0 0 के केस में आउटपुट क्या है, आउटपुट इज 1, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे 0 0 के केस में आउटपुट क्या है 1, तो 0 0 ओब्लिक 1। इस तरह से आप देखिए आपने ये मशीन बना ली। सो इट इज अ वेरी सिंपल मशीन एंड दिस मशीन विल वर्क एज द एडिंग मशीन। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? इस पे आप चलिए एक इनपुट अप्लाई करके देख लीजिए, 1001 और 0101 इसको कर लेते हैं। अब चूंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ 0 एडिशनल पे ऐड किया, वरना मुझे यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा कि मेरे दोनों इनपुट बिट क्या है, क्योंकि मुझे इनपुट बिट 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। तो जहाँ पे भी अनइक्वल लेंथ के इनपुट्स हैं, अनइक्वल लेंथ के बिट स्ट्रिंग्स हैं, तो वहां आप दोनों को इक्वल लेंथ का बना सकते हैं। जो भी छोटा वाला है उसके लेफ्ट साइड में आप जीरोस पे ऐड कर लीजिए, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखिए जैसे इस 101 को मैंने 0 ऐड करके 4 लेंथ का बना लिया। ओके, इसको देखिए सबसे पहला 1 1 है, तो मैं किसको फॉलो करूंगा, 1 1 है तो इसको फॉलो करूंगा, यानी कि मेरा आउटपुट क्या आएगा 0, आउटपुट क्या आएगा 0 और मैं 1 सी वाली स्टेट पर जाऊंगा। तो देखिए मेरा आउटपुट तो आ गया 0 और मैं कहाँ पहुंच गया 1 सी वाली स्टेट पर। तो देखिए मेरी 1 कैरी हो गई, इज इट 1 कैरी हो गई। ओके, अब 1 कैरी वाली स्टेट में मेरे मुझे क्या मिला 0 0। अब मेरा आउटपुट इनपुट क्या है 0 0, तो 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट आएगा 1 और नेक्स्ट बिट क्या गई मेरी 0 पे गई। ओके, सो 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए 1 सी से 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग में ये ट्रांजिशन लूंगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा 1। तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आया है 1 ही आया है यहाँ पे, और साथ में मैं चूंकि मूव करके 0 कैरी वाली स्टेट पे पहुंच गया, तो आप देखिए नेक्स्ट बिट की जो कैरी है वो क्या आई 0 आई, इज इट। अब आप देखिए उसके बाद अगला बिट स्ट्रीम, अगला इनपुट मुझे क्या मिलेगा 0 1। तो इस स्थिति में मुझे क्या मिल रहा है 0 1, इस स्थिति में 0 1 यानी कि 0 1 ये वाला, यानी कि आउटपुट आएगा 1। तो 0 1 की स्थिति में देखिए आउटपुट आया आपका 1 और आप उसी स्टेट पर है 0 कैरी वाली स्टेट पे। तो देखिए नेक्स्ट बिट की जो कैरी है दैट इज 0। अगेन आपको क्या मिला 1 0। ओके, सो 1 0 आउटपुट इज 1 और आप उसी स्टेट पर है। तो 1 0 देखिए आउटपुट इज 1 और आप नेक्स्ट बिट की जो कैरी है दैट इज 0, आप उसी स्टेट में रहे। आपका फिनिश हो गया, आपको आउटपुट क्या मिला 1 1 1 1 0। ओके, अब अगेन इसमें भी क्या है, चूंकि आपने अपने नंबर्स जो है जो फीड किए होंगे, चूंकि आपका प्रोसेस राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस जो है आपका कहाँ से चल रहा है राइट टू लेफ्ट, तो आपने इस यहाँ भी इनपुट बिट स्ट्रिंग जो है रिवर्स करके दिया। आपने सबसे पहले क्या दिया था 1 1, फिर दिया था आपने 0 0, फिर आपने दिया था 0 1, फिर आपने दिया था 1 0, इज इट। तो इसी तरह से आपका रिजल्ट जनरेट हुआ, पहले 0 जनरेट हुआ, फिर 1 जनरेट हुआ, फिर 1, फिर 1, यानी कि इसको आप रिवर्स करेंगे तो आपका सही रिजल्ट 1110 जो कि रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? सर ये 0 कैरी वाली स्टेट स्टार्ट स्टेट कैसे, ये एक बार बता दीजिए। देखिए आप 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 0 1 1 1 0, ये 2 नंबर आपने ऐड करने हैं। अब आप ऐड करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका बिट 1, ये हो गया आपका बिट 2, इज इट। प्रीवियस कैरी क्या है, प्रीवियस कैरी तो यहाँ पे 0 है, तभी तो आप 0 1 1 ये वाला लेंगे ना, क्लियर है। तो पहली बिट पे कैरी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट बिट पे कैरी क्या आई, तो नई स्टेट आपको पता चल जाएगी। अब अगर इन दोनों को ऐड करके आपका सपोज 1 आया और नेक्स्ट बिट की कैरी 0 आई, यानी कि आप 0 वाली कैरी वाली स्टेट पर ही स्टे करेंगे, यानी अगली बार भी आप इसी पे स्टे करेंगे, इज इट। अब आपने जब इन तीनों को ऐड किया तो आपको पता चला ये 1 वापस ये जो है आपका 0, इज इट। तो आप यानी कि अगली भी 0 कैरी वाली बिट है, उसमें आप 1 1 ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आया 0 1 अगली कैरी बिट। तो यानी कि यहाँ पे आपको पता चल गया आप 1 सी वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे। बट इनिशियली हमेशा आपकी जो कैरी होगी वो क्या होगी 0 ही होगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट विद द 0 कैरी स्टेट, दिस विल बी योर स्टार्ट स्टेट। नाउ इट इज क्लियर क्लास? यस सर क्लियर। ओके, सो दिस इज द मशीन फॉर एडिशन। अब देखिए मैंने 3 मशीन बनाई, पहला मेरा कॉम्प्लीमेंट, दूसरा मेरा इंक्रीमेंटर और तीसरा मेरा एडिंग मशीन। अगर मेरे पास ये तीनों मशीन अवेलेबल हैं, इफ आई एम हैविंग एन इंक्रीमेंटर, मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, machine for increment and machine for adding, then I can construct a machine for subtraction. Can anybody tell me how I can make a machine for the subtraction with the help of these 3 machines? Any idea?
आप लोगों ने लॉजिक डिजाइन वाला कोर्स तो पढ़ लिया है ना थर्ड सेमेस्टर में क्लास? सर टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। Yes. Okay. Suppose I am having two numbers. Suppose I am having say 1 0 1. So it is equivalent to 5. इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1. ठीक है, बेसिकली 1 1 सब्ट्रैक्ट करना था, 0 मैंने यहाँ जानबूझ करके पैड किया क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स की जो लेंथ है वो बराबर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई नंबर शॉर्टर है तो उसके लेफ्ट में जीरोस पैड करके आई कैन कंप्लीट द लेंथ। ओके, सो इट इज इक्वलेंट टू व्हाट 3 एंड माय रिजल्ट शुड बी 0 1 0 विच इज इक्वलेंट टू 2। अब देखिए 1 में से 1 गया 0। ओके, अब 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो मैं पीछे से जो है कैरी लूंगा, बोरो करूंगा। बोरो किया तो ये क्या हो गया 1 0। 1 0 में से 1 गया तो जो है 1 बचेगा। अब इधर 0 तो 0 में से 0 तो 0 बचा। तो इस तरह से 0 1 0 ये मेरा सब्ट्रैक्शन हुआ। अब इसको मैं इन 3 मशीन्स की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है मैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा। मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1। तो सबसे पहले इसका क्या लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट। सो मैंने क्या लिया 0 1 1, मैंने इसका क्या लिया वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0, इज इट और नॉट? तो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट वाली मशीन यूज की, उसको ये वाला इनपुट दिया, मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1 0 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीमेंट करूंगा, यानी कि इसमें ऐड 1 करूंगा। ऐड 1 यानी कि इंक्रीमेंटर यूज किया मैंने। अगर मैंने इसमें इंक्रीमेंटर यूज किया, ऐड 1 किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये इट विल बी 1 0 1। सो दिस विल बी द रिजल्ट इंक्रीमेंटर लगा करके। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्या मिल गया, मेरे को इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टूज कॉम्प्लीमेंट को जो मेरा नंबर जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना था उसके साथ ऐड कर लेता हूँ। जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना, जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना था दैट वाज आल्सो 1 0 1, तो मैं क्या करता हूँ उसको 1 0 1 के साथ, सॉरी 1 0 1 के साथ ऐड कर लेता हूँ। इज इट? तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, मेरा एडर यूज किया। एडर यूज किया तो अब मैं एडर यूज करूंगा तो 1 1 0 कैरी 1, यहाँ 1 आएगा, 1 1 0 कैरी 1। इज इट? इस केस में हम कैरी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर मेरी कैरी आती 0 आएगी कैरी, यानी कि मैं 0 कैरी वाली स्टेट में एंड करूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 1 कैरी वाली स्टेट में भी एंड करता हूं तो यहाँ इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन के केस में, मैं नॉर्मल एडिशन के केस में क्या करता था 1 को लेता था अगर 1 कैरी स्टेट है तो। लेकिन अगर मेरा सब्ट्रैक्शन का केस है तो 1 कैरी वाली स्टेट को मैं जो है इग्नोर करूँ। तो मेरा रिजल्ट क्या है, बचा हुआ जो कुछ भी मेरे पास रिजल्ट में आया दैट इज 0 1 0। सो दिस इज द रिजल्ट विच इज इक्विवेलेंट टू 2। सो इन दिस मैनर इफ आई एम हैविंग ones complement, incrementer and adder, these 3 machines, then I can easily make a subtractor। ये किसका माइक ऑन है भाई, अपना माइक ऑफ करिए। आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए। किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए भाई। ओके, लेट मी सी किसका माइक। दीक्षा गुप्ता, ऑफ योर माइक। Okay, so I think up till now it is clear that how we can make different machines. Okay, so this was all. Okay, one more thing, last one. Okay, we have to design a Mealy machine for marking all the input symbols which are second in a pair of double letters. तो हमें वो सारे के सारे मार्क करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग है तो यहाँ जो भी डबल लेटर का सेकंड आएगा पेयर में सेकंड, दैट आई हैव टू मार्क विद दी 1। ओके, सो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का एप्लीकेशन है
जिस टाइप का हमने मूरे मशीन से किया था, कि हम क्या कर रहे थे, मूरे मशीन्स में कुछ क्वेश्चंस के इनपुट स्ट्रिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे, जैसे कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स ए बी वर देयर, सो हमने इसके लिए बनाया था. सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो इसको लेने का केवल एक ही पर्पस है, आई कैन शो यू कि हम जो कुछ मूरे मशीन से कर सकते हैं वो मिले मशीन से भी कर सकते हैं. सो इफ माई इनपुट इज दिस, तो देखिए पहला ए 0, पहला बी 0, पहला ए 0. अब ये अपने देखिए कंटिन्यूएशन में अगर 2 आएंगे तब 1 मार्क करूंगा. तो पहला ए 0, अभी कंटिन्यूएशन में दूसरा ए आया तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 1 मार्क कर लिया. इज इट? उसके बाद फिर बी आया, तो अब ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो ये बी मेरा 0, फिर ए ये कंटिन्यूएशन में नहीं है तो 0, फिर बी ये कंटिन्यूएशन में नहीं है तो 0. अब ये अगला बी आया, तो ये इस पेयर में कंटिन्यूएशन में सेकंड लेटर है, सो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट एज 1. नाउ अगेन ये बी आया, तो ये इस वाले पेयर में, इस वाले पेयर को अगर आप देखें तो इस वाले पेयर में सेकंड है, दैट्स व्हाई इट हैज आल्सो बीन मार्क्ड एज 1, लाइक दिस. सो दिस इज आवर फंक्शनिंग व्हिच वी वांट. इज इट क्लियर व्हाट फंक्शनिंग वी वांट? इट इज क्लियर क्लास? क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट फंक्शनिंग वी वांट? यस सर. हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसमें एक तरह से कंटिन्यूएशन में कोई लेटर अगर आ रहा है तो उसको जो है हम मार्क कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी पेयर में सेकंड होगा उसको हम 1 से मार्क करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वहाँ हमारे पास कितने पेयर्स हैं. एक तरह से वी आर काउंटिंग दी हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट इन अवर इनपुट स्ट्रिंग. सो यहाँ इस इनपुट स्ट्रिंग में मेरे पास 3 पेयर प्रेजेंट है. पहला तो ये ए वाला पेयर है, दूसरा ये बी वाला पेयर है, और तीसरा ये बी वाला पेयर है. इज इट? सो ये चूंकि ट्रिपल बी अगर कहीं पे आएगा तो it will be counted as 2 pairs. One pair is this and another pair is this. Is it okay? So we are counting basically the number of pairs here. तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? अगेन बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं. देखिए स्टार्ट स्टेट, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है. अब अगर मेरे को ए मिला, सो आई विल बी मार्किंग ए 0. पहले चूंकि सब स्टार्टिंग में जो भी मुझे लेटर मिलेगा ए या बी, वो तो अभी पहला ही लेटर होगा, तो पहले वाले को तो हमें 0 ही मार्क करना है हमेशा. ओके, एंड आई विल रीच टू दिस स्टेट. ओके, दिस स्टेट आई विल से इट इज फर्स्ट ए. ओके, अगर मेरे को बी मिलता है, सो आई विल बी मार्किंग ए 0 एंड आई विल से दैट दिस इज फर्स्ट बी, दिस स्टेट. इज इट? अब मैं फर्स्ट ए वाली स्टेट में हूं. अब अगर मेरे को इस स्टेट में या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा. अगर मुझे बी मिलता है, सो अगेन इट विल बी द फर्स्ट बी. क्यों? क्योंकि ए के बाद है, तो ये अगर पेयर में होगा बी, तो ये पेयर का पहला बी है. पहला बी तो मुझे क्या करना है? 0 मार्क करना है. ओके, सो आई विल कम हियर बी ओब्लिक 0. इज इट क्लियर? लेकिन अगर ए मिलता है तो ये मेरा क्या होगा? सेकंड ए होगा. ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सेल्फ लूप बनाया ए ओब्लिक 0. तो आप देखिए इस सेल्फ लूप बनाने से मैं चाहता तो इसको अलग स्टेट पर भी ले जा सकता था और उसको जो है वहाँ 1 मार्क कर सकता था, बट उसके बाद फर्स्ट के लिए मुझे वापस फिर इस पे आना पड़ता. इज इट? लेकिन मुझे क्या करना, मुझे चूंकि आगे वाले सारे के सारे मुझे इवन ऑड नहीं करना है, मुझे आगे जितने भी पेयर्स हैं वो सब काउंट करना है. सो दैट्स व्हाई, सॉरी जस्ट 1 मिनट, नॉट 0, it will be marked as 1. It will be marked as 1. तो देखिए सेकंड ए 1 मार्क होगा, अगर थर्ड ए आता तो भी 1 मार्क होगा, फोर्थ ए आता है तो वो भी 1 मार्क होगा. जैसे कि ट्रिपल बी में आप देखिए मेरे पास 2 पेयर थे, इधर अगर एक बी और हो जाता तो एक और पेयर हो जाता. यानी जितने कंटिन्यूएशन में सिंबल्स आएंगे उससे एक कम पेयर होंगे. आप देखिए 4 बी है तो 3 पेयर है मेरे पास. सो दैट्स व्हाई केवल पहले लेटर को मुझे छोड़ना है, 0 मार्क करना है. उसके बाद वाले जितने भी सब्सिक्वेंट लेटर्स आते हैं, अगर सेम लेटर आ रहे हैं, सो एवरी लेटर आई हैव टू मार्क एज 1. सो दैट्स व्हाई देयर विल बी अ सेल्फ लूप. इसी तरह से अगर यहाँ बी वाली स्टेट पे है, अगर मेरे को एक ए मिलता है तो आई विल मूव हियर एंड मार्किंग 0. लेकिन अगर बी मिलता है तो चूंकि एक बी तो मेरे को मिल चुका, तो फर्दर बीज मेरे किससे मार्क होंगे? 1 से मार्क होंगे. सो इस तरह से मैं इस मशीन को जो है बना सकता हूँ. सो आप देखिए हाउ सिंपल इट इज टू डिजाइन. सो इस तरह से आप कोई भी जो है मिले मशीन बना सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग एंड हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव फॉर योर एफएज एंड हाउ मच यू अंडरस्टैंड योर एफएज. Depending on that, you will be able to design a Melee machine. So this was all I wanted to discuss for today.
On next lecture, I will be discussing the equivalence of the Millet and Murray machine, and that is a very important topic from the point of view of examination. एग्जाम में चाहे मिले मशीन मूरे मशीन ये डिज़ाइन करने के लिए आए ना आए, अगर आती है तो नॉर्मली मिले मशीन डिज़ाइन करने के लिए आती है, अदरवाइज मूरे मिले के डिज़ाइन से क्वेश्चन नहीं भी आता है, बट मूरे और मिले के कन्वर्जन के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो दैट नेक्स्ट टॉपिक, that is the equivalence of the Millet and Murray machine, that is quite important. So this was all for today. If you have any doubt, you can ask, otherwise we can close the class. Thank you, sir. Okay. सर Yes. सर यहाँ से सर जब स्टार्ट से हम फर्स्ट ए पर गए Okay. तो सर वहाँ पर तो हमें सेकंड ए लिखना चाहिए था ना, क्योंकि सर एक ए तो हमें मिल चुका है, तो फिर हाँ, तो सर वहाँ पे वो हमने सेकंड ए आएगा ना. वो देखिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है. आप यहाँ सेकंड ए लिखें तो इसका मतलब ये है कि यू आर लुकिंग फॉर सेकंड ए. You want to define the responsibility of the state in this manner. I have defined it what I have got. In the pair which is I am counting, I have got the first A. So that's why I am writing it as first A. देखिए जब पहला A आया तो मेरा first A हुआ, अगला A आया तो ये पेयर में सेकंड हुआ, इसलिए मैंने इसको 1 मार्क किया. लेकिन अगर अगला फिर A आता है तो उस पेयर के लिए this will be the first A. This second A will be the first A. Is it or not? So it is just the understanding. अगर आप यहाँ सेकंड ए मार्क करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कैसे मार्क करो कि पहला ए आया आपने 0 मार्क किया, ठीक है, और अब आप नाउ यू आर लुकिंग फॉर द सेकंड ए. तो अब अगर सेकंड ए आया, इज इट, तो आप उसको 1 से मार्क कर रहे हो और फिर वापस अगले सेकंड ए के लिए लुक कर रहे हो. तो इट इज राइटिंग द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Understanding what is the responsibility of that state, if you understand that correctly, then your FA will be correct. I hope you have understood. Yes, sir. Okay. Anything else? If not, that No, sir, thank you. then I am closing. You can leave the class.